खुदा दी हजूरी दे विच सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। सचमुच ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਚਮੁਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਜਣ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਭੈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਜਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ तेरी ब्लेसिंग ਨੂੰ तेरी बरकत ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। थैंक यू जीसस। ਮੇਰੀ ਢਾਲਿਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਸਭ ਜਣ ਬੋਲੇ ਮੇਰੀ ਢਾਲਿਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਥਕਣਾ ਕਰਾਂਗੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਥਕਣਾ ਕਰਾਂਗੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਗਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਖੁਦਾ। ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਗਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਖੁਦਾ। ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਆਈ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਆਈ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਯਿਸੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਯਿਸੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਸਾਜੇ ਚੜ ਗਏ ਡੁੱਬੇ ਵੀ ਤਰ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰ ਗਏ ਐ ਖੁਦਾ। ਸਾਜੇ ਚੜ ਗਏ ਡੁੱਬੇ ਵੀ ਤਰ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰ ਗਏ ਐ ਖੁਦਾ।
मैं अकड़ा अकड़ा ना मैं थकड़ा थकड़ा करांगे महिमा महिमा है खुदा ना मैं अकड़ा अकड़ा ना मैं थकड़ा थकड़ा करांगे महिमा महिमा है खुदा बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा सचमुच परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਕਿ हे ਥੱਕੇ ਤੇ ਭਾਰੇ ਦੱਬੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਚਮੁਚ ਉਹਦਾ ਝੂਲਾ ਨਰਮ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਚਮੁਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਚਮੁਚ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਚਮੁਚ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਢੂੰਡੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਓਗੇ ਖਟਖਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਚਮੁਚ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਚਮੁਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा ईमान जो मैं करया भला यीशु चलो कैरी ऑन रखो हो रहा है जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया
काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। यहोवा जिंदा खुदा, हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ, यहोवा, यहोवा, माँ पढ़ ली, पढ़ ली, यीशु ने मेरी माँ पढ़ ली, माँ पढ़ ली, यीशु ने मेरी माँ पढ़ ली, सुधी मराद जाग गई, सदी बरात जाग पई, यीशु ने मेरी माँ पढ़ ली, माँ पढ़ ली, यीशु ने मेरी माँ पढ़ ली, माँ पढ़ ली, यीशु ने मेरी माँ पढ़ ली, माँ पढ़ ली, यीशु ने मेरी माँ पढ़ ली। दुखिया ना दर्द घटाउण वाला केड़ा सी, यदि सब गुनाह तू छुड़ाउण वाला केड़ा सी, यदि सब गुनाह को छुड़ाउण वाला केड़ा सी, जिसे बिना बात मेरी, जिस बिना बात मेरी नहीं, यीशु ने मेरी माँ पढ़ ली, माँ पढ़ ली, यीशु ने मेरी माँ पढ़ ली, माँ पढ़ ली, यीशु ने मेरी माँ पढ़ ली, 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 माँ, यीशु ने मेरी माँ पढ़ ली, माँ पढ़ ली, माँ, यीशु ने मेरी माँ पढ़ ली, माँ पढ़ ली, माँ, यीशु ने मेरी माँ पढ़ ली, माँ पढ़ ली, माँ, यीशु ने मेरी माँ पढ़ ली, माँ पढ़ ली, माँ, माँ पढ़ ली, मंग केड़ा दसो रखू सीने लाके, यीशु मंग केड़ा दसो रखू सीने लाके, यीशु मंग केड़ा दसो रखे सीने लाके, यीशु मंग दसो केड़ा रखे सीने लाके, सदा दी गुलामी टूट गई, सदा दी गुलामी टूट गई, यीशु ने मेरी माँ पढ़ ली, माँ पढ़ ली, यीशु ने मेरी माँ पढ़ ली, माँ पढ़ ली, यीशु ने मेरी माँ पढ़ ली, माँ पढ़ ली, यीशु ने मेरी माँ पढ़ ली, 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 माँ
यीशु मेरे खून की पहचान यीशु यीशु सारा जहान मेरी रूह दा बयान सुन ले सारा जहान मेरी रूह दा बयान मैं यीशु तैनू नहीं छड्डना मैं दिल विचों नहीं कढना मैं यीशु तैनू नहीं छड्डना ये दिल विच नहीं कढना यीशु तैनू नहीं छड्डना मैं दिल विचों नहीं कढना मैं यीशु तैनू नहीं छड्डना मैं दिल विचों नहीं कढना मैं दिल विचों नहीं कढना मैं यीशु तैनू नहीं छड्डना मैं दिल विचों नहीं कढना मैं यीशु तैनू नहीं छड्डना ये दिल विचों नहीं कढना मेरी जान ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਆਮੀਨ प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में प्रिय मेरे बहन भाइयों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो कि परमेश्वर ने हमें दिया है। और आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सीखेंगे। ज़्यादा समय मैं नहीं बोलूँगा, 10 मिनट आप लोग इस जो पवित्र वचन को सुनेंगे और उसके बाद मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा और ताकि परमेश्वर आपके जीवनों से हर तरह के बंधन को तोड़े, हर तरह के शराब को तोड़े। और परमेश्वर का कलाम है जो हमारे जीवन से बंधनों को तोड़ता है, शराबों को तोड़ता है। और जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो याद रखिए परमेश्वर हमसे बात करता है। आप हमेशा प्रार्थना में ये बोलते हैं कि हे प्रभु आप हमारे साथ बात करें, हे प्रभु आप हमारे साथ बात करें। सो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे साथ बात करता है। आज मैं आपको कुछ युद्ध के बारे में बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर से आत्मिक युद्ध के बारे में। ये लिखा है इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय वचन 10 से हम लोग इसको देखेंगे। आत्मिक युद्ध। और आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए हमारे पास आत्मिक हथियारों का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और याद रखिए जब तक आपके पास आत्मिक हथियार नहीं होंगे आप किसी भी युद्ध को जीत नहीं सकते। सो प्रिय दोस्तों, वो आत्मिक हथियार क्या हैं परमेश्वर के, आज हम ये पवित्र वचन के अंदर से देखते हैं। लिखा है 10 वचन के अंदर, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। प्रिय दोस्तों, यदि हमारे पास परमेश्वर के हथियार होंगे तभी हम शैतान की सब युक्तियों के सामने खड़े रह पाएंगे और तभी हम परमेश्वर की अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उन अंधकार की युक्तियों का सामना कर पाएंगे। सो प्रिय दोस्तों, हम पवित्र वचन के अंदर से अगला वचन पढ़ते हैं, वचन 12।
क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकारियों के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। प्रिय दोस्तों, हमारा जो युद्ध है ना तो किसी मांस के साथ है, ना किसी इंसान के साथ है, ना किसी धर्म के साथ है, ना किसी जाति के साथ है, ना किसी देश के साथ है। हमारा जो युद्ध है वो ना तो लहू बहाने के लिए किसी का, ना किसी को नीचा दिखाने के लिए है। हमारा जो युद्ध है वो शैतान की शक्तियों के साथ है, दुष्ट की शक्तियों के साथ है। और याद रखिए, दुष्ट की शक्तियां कहाँ काम करती हैं? हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे बच्चों के जीवन में वो दुष्ट की शक्तियां काम करती हैं। बीमारियों के द्वारा, घर में झगड़ा करवाकर, आपका कोई ना कोई नुकसान कराकर, बिजनेस में लॉस कराकर, जिसके साथ आपका बहुत ज्यादा प्रेम है उसके साथ झगड़ा करा के, इस तरह से दुष्ट की शक्तियां हमारी लाइफ में काम करती हैं और हम शैतान की युक्ति को समझ नहीं पाते। इन दुष्ट आत्माओं की युक्ति को, शैतान की युक्ति को आप तभी समझ पाएंगे प्रिय भाई बहनों, जब आप आत्मिक हैं, जब आपके पास परमेश्वर के हथियार हैं, जब आप उस दुष्ट के साथ लड़ना शुरू करेंगे। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों में शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, है ना। अगला वचन बताता है ना, अंधकार की शक्तियां कहां पर हैं? छिपी हुई आकाश के अंदर। आकाश के अंदर काम करती हैं अंधकार की शक्तियां। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रिय भाई और बहनों, और वो अंधकार की शक्तियां हमारी प्रार्थना को आकाश के अंदर रोकती हैं। हम बाइबल के अंदर से देखते हैं दानियल नबी की प्रार्थना को, है ना, शैतान की युक्तियों ने आकाश के अंदर रोक लिया था और परमेश्वर के फरिश्ते गए उन शैतान की युक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से दानियल की प्रार्थना को छुड़ाया और परमेश्वर के पास उन्हें पहुंचाया। और फिर उत्तर लेकर दानियल की प्रार्थना का स्वर्गदूत आया। 21 दिन के बाद उसकी प्रार्थना का उत्तर आया। प्रिय दोस्तों, आप भी जो प्रार्थना करते हैं आपको याद रहना चाहिए, आपकी प्रार्थना को दुष्ट अंधकार रोकता है और वो आपकी प्रार्थना को रोक ना सके इसलिए लगातार बाइबल बताती है प्रार्थना करते रहें। यीशु मसीह ने भी हमें कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। और जब यीशु मसीह के ऊपर दुख की घड़ी थी गतसमनी बाग के अंदर, यीशु मसीह जी 3 बार प्रार्थना करने के लिए गए और अपने चेलों को सोता हुआ पाया और तब उस समय प्रभु ने कहा इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। शैतान बार बार परीक्षाएं लेकर आएगा, शैतान बार बार तरह तरह की अभिलाषाएं लेकर आएगा। यदि आपका प्रार्थना भरा जीवन है, बाइबल पढ़ने वाला जीवन है ना, और आपके पास परमेश्वर की आत्मा के, परमेश्वर के हथियार हैं, तो आप उन दुष्ट की बुरी युक्तियों का सामना जरूर कर पाएंगे, उनके सामने जरूर खड़े रह पाएंगे। तो लिखा है वचन 13 के अंदर, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। यानी कि पवित्र बाइबल बताती है में बुरे दिन अब जरूर आएंगे। यदि अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी आते हैं और उन बुरे दिनों के अंदर सामना करने के लिए परमेश्वर हमें अच्छे दिन देता है कि हम अपने आप को उन अच्छे दिनों के अंदर तैयार कर लें, है ना, परमेश्वर के हथियारों से अपने आप को भर ले के उन बुरे दिनों में हम सामना कर सके। परमेश्वर का जो हथियार है दोस्तों, वचन 14 के अंदर लिखा, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सच्चाई का सबसे पहला हथियार है शैतान को हराने के लिए, शैतान की युक्तियों को हराने के लिए, शैतान की ताकतों को हराने के लिए आपके पास सत्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सत्य क्या है? यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। सच्चाई यीशु मसीह है। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करता है वो सच्चाई में चलता है, वो अंधकार में नहीं चलता, वो ज्योति में चलता है, वो रोशनी में चलता है। इसलिए प्रिय दोस्तों, सच्चाई का आपकी लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप एक सच्चे मसीह हैं और तभी आप दुष्ट की शक्ति के सामने खड़े
रह सकोगे। ये हमारा बहुत बड़ा हथियार है। सत्य, सच्चाई और धार्मिकता की जिलम पहनना। अगला है धार्मिकता की जिलम, धर्मी बनना। जब आप सच्चे मसीह धर्मी बनते हैं तो परमेश्वर का एक सुरक्षा कवच आपके आत्मा के ऊपर आता है, आपकी लाइफ के ऊपर आता है, आपके परिवार के ऊपर आता है, आपके बिजनेस के ऊपर आता है, आपके बच्चों के ऊपर आता है ना। और इसलिए जरूरी है कि हम धर्मी बने, है ना। अब्राहम धर्मी था, अय्यूब धर्मी था, दानियल नबी धर्मी था, सद्रक मेशक अबेदनगो धर्मी था। ऐसे बाइबल के अंदर बहुत से उदाहरण हैं जो प्रभु के लोग धर्मी हुए। दाऊद धर्मी था, है ना। सो इसलिए हमें धर्मी बनना जरूरी है। और ये लोग धर्मी थे। मूसा धर्मी था, पौलुस धर्मी था, गिदोन धर्मी था, तभी ये दुश्मनों की फौजों को मार भगाते थे, तभी दुश्मनों की फौजों के ऊपर फतेह पाते थे। तो धर्मी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपका दूसरा हथियार है, धर्मी बनना। और पांव में मेल के सुसमाचारी के तैयारी के जूते पहनकर, है ना। सुसमाचार, आपके पास सुसमाचार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुसमाचार क्या है आपको पता होना चाहिए, है ना। सुसमाचार है यीशु मसीह इस दुनिया में आया, यीशु मसीह हमारे लिए घायल हुआ, यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, यीशु मसीह ने हमारे लिए कीलें ठकवाई, यीशु मसीह हमारे लिए सलीब के ऊपर चढ़ गए और कब्र में चले गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आसमान में चले गए 40 दिन के बाद और फिर से हमें लेने के लिए इस धरती के ऊपर आएंगे। ये सुसमाचार है। इस सुसमाचार का आपकी लाइफ में होना जरूरी है, जिसके बारे में प्रेरित पौलुस कहता है पांव में मेल की सुसमाचारी के जूते पहनना। एक जगह से दूसरी जगह जा जाके प्रभु के संदेश को देना, यह भी एक बहुत तकड़ा हथियार है हमारा, जो शैतान के अगेंस्ट काम करता है। जितना आप सुसमाचार फैलाएंगे उतना ज्यादा वो दोस्त आपकी लाइफ से दूर होगा, हार जाएगा। और आगे है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल, विश्वास का होना भी जरूरी है। सच्चाई में चलते हैं, अच्छी बात है। सुसमाचार फैलाते हैं, अच्छी बात है। आप एक धर्मी पर्सन हैं, अच्छी बात है। पर इसके साथ साथ विश्वास का भी आपकी लाइफ में होना जरूरी है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो तुम पहाड़ से कहोगे कि समुद्र में चला जा, तो वो चला जाएगा। आपका विश्वास राई के दाने जितना, थोड़ा सा भी विश्वास आपके जीवन में है तो आप दुष्ट की ताकतों के ऊपर फतेह पा जाएंगे। राई के दाने का दृष्टांत प्रभु ने क्यों कहा कि यदि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर होगा? याद रखिए, विश्वास बढ़ता और कम होता है, इसलिए राई के दाने का दृष्टांत खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया। सो अब्राहम का विश्वास था, सारा का विश्वास था, इसीलिए बुढ़ापे में प्रभु ने उन्हें आशीषित किया और वो दुष्ट, वो बांझपन उसकी लाइफ से चला गया, वो दुष्ट हार गया जब उन्होंने विश्वास रखा। सो प्रिय दोस्तों, उसके बाद है, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का तोप और आत्मा की तलवार। उद्धार पाए होने आप व्यक्ति होने चाहिए युद्ध करने के लिए। आपने अपने पापों से तौबा और पश्चाताप किया हुआ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद लिखा, और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाइबल के अंदर लिखा, ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश होते हैं। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र का ज्ञान है, पवित्र बाइबल का ज्ञान है, तो प्रिय दोस्तों आपके सामने कोई नहीं ठहर सकेगा। एक बात को भी याद रखिए, आपसे ज्यादा शैतान बाइबल की नॉलेज रखता है, तो उससे ज्यादा आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो दुष्ट प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने बाइबल से वचन बोले। जब खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन रात के उपवास के अंदर थे और
प्रभु ने यीशु ने भी वचन के साथ उसको उत्तर दिए और इसीलिए वो हार गया। शैतान की शक्तियों के ऊपर वचन बोले खुदावंद यीशु मसीह का, दुष्ट आत्माओं के सामने खुदावंद यीशु मसीह का वचन बोले, यीशु के लहू को पुकारे, हालेलुया, तो वो आपके सामने से दुष्ट भाग जाएगा। इसलिए लिखा है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो इसे, अब ये आपको मिल रहा है, इसे ग्रहण करें, इसे ले ले प्रिय दोस्तों। और लास्ट है हर समय और हर प्रकार से करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। लास्ट प्रभु का हथियार प्रिय दोस्तों, इसके बारे में प्रभु बोल रहा है ना। देखिए कोई भी चीज है, नाई कैंची चलाता है बालों के ऊपर तो वो खुली हो जाती है। तलवार आप चलाते हैं, चलाते चलाते तलवार भी खुली हो जाती है। मेरी प्रिय बहनें सब्जी काटती हैं किचन के अंदर तो चाकू भी उसकी धार खुली हो जाती है, धार नहीं रहती उसमें, है ना। तो ये जितने भी हथियार मैंने पहले बोले, विश्वास, उद्धार का टोप, सुसमाचार की तैयारी के जूते, धार्मिकता की झिलम, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, विश्वास, ये सब जो हथियार हैं काम में लाते लाते कोई भी हथियार है खुंडा हो जाता है। तो प्रिय दोस्तों, इन हथियारों को तीखा करने के लिए, इन हथियारों को कायम करने के लिए हमारे पास है प्रार्थना की ताकत। ये हथियार जब आप प्रार्थना करेंगे तो ये हथियार तीखे रहेंगे आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके घर में काम करते रहेंगे। इसलिए यहां पर लिखा है हालेलुया, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों से बोला, जब गतसमनी बाग के अंदर से 11 शागिर्दों से बोला जब गतसमनी बाग के अंदर थे, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तो यहां पर भी प्रेरित पौलुस लिख रहा है, लगातार जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, विनती करते रहो, खासकर पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते रहो, है ना। पवित्र लोग कौन है? जो जाग कर प्रभु का हालेलुया वचन फैलाते हैं, जाग कर जो प्रार्थना करते हैं, दिन रात हालेलुया प्रभु का काम करते हैं, दुआएं करते हैं, वो पवित्र लोग हैं, पवित्र कलीसिया हैं। उनके लिए लगातार प्रार्थना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्रिय दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं जो आज आपने वचन सुना है, आप इन सब हथियारों को लेंगे, परमेश्वर के वचन को आज से पढ़ना शुरू करेंगे और आज से प्रार्थना करना भी आप शुरू करेंगे। लगातार 2.5-3 घंटे दिन और रात की आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, तब जाके आप शैतान के साथ मल युद्ध को जीत पाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं और आंखें बंद करेंगे, मेरे साथ एक मन एक चित्त हो जाएं प्रार्थना में। मैं आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करूंगा। यदि आपकी कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है आप मुझे भेज सकते हैं। आइए आंखें बंद करेंगे प्रिय दोस्तों, मेरे साथ मिलके एक मन हो जाए, एक मन एक चित्त की प्रार्थना को खुदावन सुनते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, इसी समय इसी वक्त आपके जीवित और जिंदा सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड जीसस। जो मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु जी कमेंट कर रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से सबसे पहले मन के लिए दुआ करता हूँ लॉर्ड जीसस, आप उन्हें ब्लेस करें, उन्हें ब्लेस करें, उन्हें ब्लेस करें, उन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। जितने लोग इस समय लाइव हालेलुया, जिन घरों में मेरी आवाज जा रही है, जिन कानों में मेरी आवाज जा रही है, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी आपने इस आवाज को ब्लेस किया है हालेलुया। जो लोगों के घरों में इस समय ऑनलाइन जारी है, माइटी परमेश्वर उन घरों के अंदर से दुष्ट की शक्तियां खत्म हो जाएं, उन घरों के अंदर से अंधकार की शक्तियां खत्म हो जाएं, उन घरों के अंदर से दुष्ट आत्माएं चली जाएं यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। पिता परमेश्वर जी, इस चर्च के बहुत से लोग ऐसे हैं प्रभु जी हालेलुया जो विदेशों के अंदर जाना चाहते हैं प्रभु जी
हालेलुया, जिनके काम रुके हुए हैं, जिनके हालेलुया फाइलें रिफ्यूज हो चुकी हैं, हालेलुया फिर भी प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी, लगातार हार नहीं मार रहे, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपके जीवित जिंदा समर्थी नाम से लॉर्ड तेरे बच्चों के वीजे लगने में मदद करें, उनके पासपोर्ट के ऊपर वीजे लगने में मदद करें प्रभु जी, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए प्रभु जी ट्राई कर रहे हैं पिता परमेश्वर जी, यीशु तेरे नाम से लॉर्ड जीसस उन भाई और बहनों को वीजे लगने पाए। हालेलुया। ओ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूं, जिन्होंने आइलेट्स कर ली खुदावंद और फाइल सबमिट करके एम्बेसी के अंदर दी हुई है, वीजा नहीं लग पा रहा प्रभु जी, उनकी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की फीस भी जमा हो चुकी है। माइटी परमेश्वर मैं उन भाइयों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह जी, उनका जल्द से जल्द वीजा मिलने में पिता परमेश्वर जी मदद करें लॉर्ड जीसस, मदद करें लॉर्ड जीसस। तमाम रुकावटें यीशु मसीह के नाम से चली जाएं। हालेलुया। जो परिवार सहित यहां से पक्के होके बाहर फौरन जाना चाहते हैं प्रभु मदद करें, मदद करें, वीजे लगने में, पक्का होने में मदद करें पिता परमेश्वर जी। हालेलुया। जो भाई बहन बच्चे प्रभु जी मुझे हालेलुया विदेश से इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु जी, उनके मन में जो भी ख्वाहिश है, उनके दिल की जो भी प्रार्थना पिता परमेश्वर जी आप सुन रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें काम नहीं मिल रहा पिता परमेश्वर, जिन्हें अच्छा काम मिलने के लिए मदद करें प्रभु जी, जो विदेश के अंदर पक्के नहीं हो पा रहे पिता परमेश्वर जी, पक्का होने के लिए प्रभु जी उन्हें मदद करें लॉर्ड जीसस। तमाम बंधन यीशु के नाम से जाएं, तमाम शराब यीशु के नाम से जाएं। हालेलुया। ओ रबा बाबा बाबा रसाबता रबाता रबाता रे, जो बहनें खुदावंद अपने बच्चों के लिए रो रही हैं, जो माताएं अपने बच्चों के लिए रो रही हैं, हालेलुया, जिनके बच्चे नशे के अंदर जा चुके हैं, जिन बच्चों के पास अच्छे काम काज नहीं, अच्छा कारोबार नहीं है, प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उनके लिए रास्ते खोल दे लॉर्ड जीसस, उनके लिए रास्ते खोल दे प्रभु जी। और इस चर्च के लोग ज्यादा से ज्यादा रूहें बचाने वाले बने पिता परमेश्वर जी, आपके जीवित जिंदा समर्थी नाम से लॉर्ड जीसस ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने वाले बने प्रभु जी, ताकि बहुत सारे लोग उद्धार पाएं, यीशु मसीह को जान सकें, स्वर्ग के लिए तैयार हो जाएं लॉर्ड जीसस। मेरे प्रभु जी धन्यवाद, जो दुख में है, दर्द में है, पीड़ाओं में है, सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, टीवी की बीमारी से पीड़ित हैं, प्रभु यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं, जिनके पेट के अंदर इन्फेक्शन है, जिनके लीवर के अंदर इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूं पिता परमेश्वर जी, अपना हाथ बढ़ाएं, छुएं, उन्हें आजाद करें। हालेलुया। यीशु के नाम से आजाद हो जाएं। हालेलुया। जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हैं, आवाज सुनते ही यीशु के नाम से आजाद हो जाएं। जो बीमारी से जकड़े हैं, आवाज सुनते ही यीशु के नाम से आजाद हो जाएं बीमारी से। प्रभु आपकी स्तुति हो। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, बहुत से जन हील हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत सी भाई और बहन चंगाई पा रही हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूं लॉर्ड जीसस। आदर महिमा जलाल आपको देता हूं प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया है। यीशु मसीह का नाम लेकर मैं प्रार्थना मांगता हूं, आमीन और आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रिय दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आप सबको आशीषित किया आज के वचन के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा, और इस प्रार्थना को और इन ब्लेस्ड गीतों को अपने घर में चलाएं, बार बार इसे सुने, और ताकि आपके घर से सब तरह के बंधन टूटें इस आशीषित वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा। सो जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।